ओके फोक्स, तो लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस किया था हीप ऑपरेशंस के बारे में, स्पेसिफिकली 3 ऑपरेशंस. वन इज heapify, then we talked about insertion, and then we talked about deletion the maximum element if it is a max heap, or deleting the minimum element if it is a min heap. Okay, तो इस वीडियो में I'll go and code these 3 operations. Also will code the way of getting the maximum element in the max heap, and if we are coding the min heap, then getting the minimum element, right? तो अपन केवल इस वीडियो में मैक्स हीप ही कोड करेंगे, ठीक है. मिन हीप इज क्वाइट सिमिलर टू हाउ मैक्स हीप इज. तो कोड बहुत ही सिमिलर, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस यहाँ होंगे. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट आई गिव यू दैट इज एन एक्सरसाइज, राइट. तो आप जरूर कमेंट्स में कोड करके बताना कि आपसे मिन हीप कोड हुआ कि नहीं हुआ. नहीं तो अगर बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मिन हीप नहीं बना, तो आई विल डेफिनेटली पुट अप अ वीडियो फॉर दैट. ओके, so let's quickly jump into the code and let's start doing this. Okay, so what we want is we want a class of max heap. ठीक है, तो max heap का हमें class चाहिए, and we need a list, let's say, right, list of integer and a heap. Okay, we'll have one constructor max heap. ठीक है, वो जो कोई input नहीं ले रहा, but you have to make sure कि हमारा heap जो है it is initialized properly. Okay, so array list से हमने इसको initialize कर दिया, and there is an integer. We'll also have another constructor जहाँ पे हम basically क्या लेंगे, हम basically लेंगे एक array लेंगे as an input, right, as an and then what we'll do is we will actually build this heap, right. So build heap, or basically not heap, max heap, using nums array. This is something that I'll code later, so let me just toggle it down. And the first function that we have to implement is called as getting the maximum element from the heap, right. So I'll call this peek. Okay, peeking into the heap कि बताओ भाई maximum element क्या है. तो अगर मेरा जो heap है, right, so if heap is empty, right, तो basically heap में तो कोई element है ही नहीं, तो आप क्या return करोगे, we can just return in this case, let's say integer dot max value, या फिर -1, or you can throw an exception as well here, right. Otherwise we have our अगर हम यहाँ पहुँच गए तो इसका मतलब है कि हमारे पास maximum element है, right, and it is where it is at the index 0, right. Index 0 पे हमें हमारा maximum element मिल जाएगा. So this function is done. Now we are gonna implement the heapify function, right. So let's implement that. So heapify, और याद होगा आपको जब हमने heapify के बारे में डिस्कस किया था, right, when we discussed heapify, what we want is a index, right. एक इंडेक्स हमें चाहिए होता है, और इस इंडेक्स पे हम ये देखते हैं कि भाई इस सब ट्री पे मेरे को बेसिकली देखना है कि कैन आई डू heapify और दैट और नॉट, राइट. सो द वे वी सी दैट कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस पे मेरे को करना था, तो आई चेक कि लेट्स से आई चेक कि भाई इसका कोई चाइल्ड एलिमेंट है जो इससे एक्चुअली बड़ा है, राइट, इन द मैक्स हीप. तो अगर वो इससे बड़ा है, इसका मतलब है कि हीप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, देन व्हाट वी डू, वी स्वैप दैट फेलो विद द व्हाटएवर द एलिमेंट एट द करंट इंडेक्सेस, राइट. आफ्टर स्वैपिंग, लेट्स से इसके साथ हमने स्वैप करें, लेट्स से, राइट, देन व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट, वी चेक विद दिस एलिमेंट, राइट, कि इसके चाइल्ड के साथ बेस को स्वैप करना है कि नहीं करना, मतलब इसका कोई चाइल्ड इससे बड़ा है या नहीं है. अगर इसका चाइल्ड को इससे बड़ा है, तो इसका मतलब अगेन वी हैव टू स्वैप, एंड वी विल स्वैप टिल there is nothing remaining to swap, right. So let's do that. So we will call this function heapify, and it will take only one parameter. I'll call this index, ठीक है, and we will swap till let's say we can say कि the current index is index, so we can say while index is less than size, right. साइज इज बेसिकली जो हीप का हमारा साइज है, राइट. हीप में हम लोग हीपिफाई कर रहे हैं, तो दैट इज द साइज. सो बेसिकली वी नीड टू गेट द पैरामीटर आउट हियर. सो साइज दिस विल बी हीप डॉट साइज, ठीक है. एंड देन वी कैलकुलेट, वी चेक द लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स, राइट. तो लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स विल बी 2 into index plus 1. Right, this we have already discussed, and then we calculate the right child index as well. Right child index is again 2 into index plus 2. So what does it mean here is, for example, ये हमारा जीरो इंडेक्स है, राइट. तो इसका चाइल्ड इंडेक्स क्या है, 1 and 2. सो 2i plus 1 2i plus 2. यहाँ पे 1 है तो 1 का 3 और 1 का 4.
1 का 3 कैसा आएगा, 2 1 plus 1 3 and 2 1 plus 2 is 4, right? So this is how we get the child indexes. Okay, so the first thing that we have to check here कि if the value, right, if the value at left child index, right, अगर ये वैल्यू बेसिकली हम मैक्सिप का देख रहे हैं तो मैक्सिप की प्रॉपर्टी कब वायलेट हो सकती है, जब लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स में भी ग्रेटर है द करंट इंडेक्स, राइट, करंट इंडेक्स इज इंडेक्स। अगर ऐसा है तो बेसिकली आई माइट हैव टू स्वैप, राइट, मतलब ये तो डिसाइड होगी हमें स्वैप करना ही, लेकिन कैसे करें, तो हम क्या कर सकते हैं कि, और हमें एक और टाइम जब स्वैप नहीं करना पड़ेगा, जब बेसिकली इस केस में, राइट, इस केस में क्या हो रहा था कि देयर वाज सम केसेस, राइट, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि इस पोजीशन में मेरे को चेक करना है कि मुझे स्वैप करना है कि नहीं करना है ना, तो लेट्स से इस पे आप ये और ये हमारा हीप दे रखा है सब कुछ, तो व्हाट वी आर सेइंग इज फॉर एग्जांपल दिस 40 इज एक्चुअली ग्रेटर देन बोथ इज लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, तो इस केस में मेरे को स्वैप नहीं करना, एक्चुअली आई कैन जस्ट स्टॉप हियर, राइट, सो बट इस केस में मुझे स्वैप करना है, सो व्हाट आई कैन डू इज बेसिकली आई कैन, एंड वी हैव टू ऑल्सो फिगर आउट कि भाई कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है, राइट, इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है जिसके साथ, और वो एलिमेंट बेसिकली इससे बड़ा है कि नहीं, और उस केस में मैं स्वैप करूँगा। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ट्रैक न्यू इंडेक्स, प्लस मी कॉल दिस लार्जेस्ट, एंड लार्जेस्ट इज इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। सो इफ आई सी दैट कि इफ माई हीप डॉट गेट लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स, इफ इट इज ग्रेटर देन द इंडेक्स वैल्यू, राइट, सो दिस विल बी maybe this I can put it as largest, right? अगर ऐसा है then I say कि largest is equal to left child index, ठीक है। And finally I can also say that कि अगर यार मेरा right child, right, अगर right child वाला जो index है, right child index is this index, if I paste it here, and if this is greater than largest then I can say that largest is equal to right child index। अब इस केस में क्या होगा ना, largest will be actually storing the index among the 3 elements, वो इंडेक्स स्टोर कर रहा होगा जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि यार अगर मेरा जो लार्जेस्ट जो इंडेक्स था, राइट, इफ इट इज नॉट इक्वल टू द इंडेक्स, राइट, अगर वो करंट इंडेक्स जिस पे हम ईपीफाई रन कर रहे हैं या फिर जिस पे हम पहुंचे, अगर वो इंडेक्स के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे एक्चुअली भी स्वैप करना है, ठीक है। So the way we do this is we say we can do collections dot swap, and किस में स्वैप करना है, हमें हीप वाली लिस्ट में स्वैप करना है बिटवीन इंडेक्स एंड लार्जेस्ट, ठीक है। तो हमने स्वैप कर दी, ठीक है। एंड देन फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, राइट, तो एक्चुअली लेट मी राइट विद फ्यू एग्जाम्पल्स तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज द वैल्यू, राइट, 20 30 एंड 40, ठीक है, और ये हमारा 0 इंडेक्स, ये हमारा 1 इंडेक्स और ये हमारा 2 इंडेक्स, ठीक है। हमारा इंडेक्स अभी इसको पॉइंट कर रहा है, राइट, दिस इज लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स, दिस इज राइट चाइल्ड इंडेक्स, ठीक है। अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला कि भाई इस केस में वी आर चेकिंग कि कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि ये जो 40 है, राइट, दिस 40 इज द लार्जेस्ट वन, ठीक है। तो ये अपने लार्जेस्ट में आ गया हो, तो लार्जेस्ट में अपने क्या स्टोर किया, मैं 2 स्टोर किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों को हमें स्वैप करना है। आफ्टर स्वैपिंग दिस 40 विल कम अबव एंड दिस 20 विल कम बिलो, ठीक है। एंड देन व्हाट विल हैपन इज कि यार यहाँ पे हमने कर लिया, अब हम बेसिकली, और मतलब ये पार्ट हमारा बेसिकली हीपिफाइड होगा, लेकिन इसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम इंडेक्स को नीचे ले आते हैं, ठीक है, इंडेक्स को नीचे ले आते हैं। तो इंडेक्स को नीचे कैसे ले आएंगे, इंडेक्स को नीचे लाएंगे क्योंकि लार्जेस्ट तो एक्चुअली इसको पॉइंट कर रहा है ना, RCI को। तो ऑल वी हैव टू से इज कि इंडेक्स इज इक्वल टू लार्जेस्ट इन दिस केस, ठीक है। तो इंडेक्स इज इक्वल टू लार्जेस्ट, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कब नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास ये एग्जाम्पल है 40, दिस इज 20, दिस इज 30, है ना, ये अपना इंडेक्स है। तो हुआ क्या होगा, अपना लार्जेस्ट भी इंडेक्स को ही पॉइंट कर रहा होगा, तो ये दोनों बराबर होगा। तो बेसिकली इस केस में हमारा मतलब ये पॉइंट हो रहा है कि ऑलरेडी हीपीफाई है ही, है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, बस हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे और यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन इस वाले केस में हमने एक चीज़ देखा कि इंडेक्स हमारा भी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसको 2 को, है ना। तो अब हमारा लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स होगा 2 × 2 + 1 नेक्स्ट इटरेशन में, दैट विल बी 5, एंड हमारा राइट चाइल्ड इंडेक्स क्या होगा,
2y plus 1, so basically 6. And then what we are doing, we are saying कि we are accessing it in the heap, पर ये index तो exist नहीं करता है ना, तो we have to make sure कि we are not accessing कुछ ऐसा out of bounds टाइप का. तो we can say कि if left child index is less than size and this property, right, this property कि heap rule हमारा violate हो रहा है क्या, तभी हम कुछ ऐसा करें. ठीक है ना, तो same thing I have to do for the right one as well. So this and this. ठीक है, तो heapify हमारा implement हो गया. Now the next function is something that we have to do is public void and insert. ठीक है, inserting a value in the heap. ठीक है, तो insert कैसे करते थे? insert आपको याद होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका करंट हीप कुछ ऐसा दिखा, let's say 30 and 20 and this is index 0, this is index 1, and let's say we have to add 10 here, right, or not 10 actually, जैसा करते हैं जिसमें हमें swap करने की जरूरत पड़े. तो let's say we are inserting let's say 40. ठीक है, 40 के लिए हम क्या करते थे, इसके एंड में हम 40 डाल देते थे. ठीक है, 40 हमने इसमें डाल दिया आखिरी में. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बबल अप करना है. बबल अप करना है मतलब कि हमें देखना है कि ये 40 बेसिकली अपने करेक्ट पोजीशन में है या नहीं, क्योंकि इसको अभी अपन ने अभी डाला ना, तो हो सकता है कि 40 में करेक्ट पोजीशन में ना. ठीक है, तो इसका इंडेक्स अभी हो गया 2 हो गया. ठीक है, एंड देन वी चेक कि भाई इसका पेरेंट इंडेक्स क्या है. पेरेंट इंडेक्स इसका कैसे निकाल देते हैं हम, i minus 1/2, राइट, 2 minus 1 is 1, 1/2 is 0, तो उसका पेरेंट इंडेक्स हमें मिल जाएगा. ओके, देन वी से राइट कि वी से कि फॉर एग्जाम्पल जो भी पेरेंट इंडेक्स में जो वैल्यू है, ठीक है, पेरेंट इंडेक्स में जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हमारे जो ये करंट वैल्यू है जिसको हम इंसर्ट किए हैं किसी इंडेक्स में, क्या ये पेरेंट इंडेक्स वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है? अगर ऐसा है तो हम भी कर सकते हैं, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे. सो दिस 40 विल कम हियर एंड दिस 30 विल कम हियर. ओके, राइट, एंड आफ्टर स्वैपिंग दिस व्हाट शुड हैपन इज कि अब हमें पता करना है कि यार ये वैल्यू और ऊपर जा सकती है कि नहीं जा सकती है ना. तो हम क्या करते हैं, फिर हमारा इंडेक्स बेसिकली यहाँ आ जाता है ना. तो अगर मान लो इंडेक्स हम 2 से स्टार्ट किया तो हमारा इंडेक्स 0 पे आ गया होता, क्योंकि अब हमें पता करना है कि ये और ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता. दिस इज व्हाट वी डिड इन इंसर्शन, राइट, वी ऐड द एलिमेंट एट द एंड एंड देन वी बबल अप. बट व्हेनेवर द इंडेक्स इज 0, राइट, जब भी इंडेक्स हमारा 0 हो गया अब तो बेसिकली हमें और चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना. जब भी हमारा इंडेक्स बेसिकली 1 या फिर 1 से बड़ा है तभी तो हमें पेरेंट इंडेक्स मिलेगा. सो दिस इज अनदर थिंग वी हैव टू चेक. तो ये हमारा बेस केस हो जाएगा, राइट. सो वी आर सेइंग इज कि first thing we have to add in our heap this value, right, so we have added it to the end. Then we are saying ki while this let's get the index out, right, so int index is equal to heap dot size minus 1, क्योंकि हमें लास्ट इंडेक्स दे देगा. ठीक है, so we say कि हमें बेस केस हमारा क्या हो जाएगा, while index is greater than 0, तब तक हम शायद बबल अप कर सकते हैं, राइट. सो फॉर बबलिंग अप वी फर्स्ट कैलकुलेट द पेरेंट इंडेक्स. सो पेरेंट इंडेक्स इज इंडेक्स minus 1 and then we divide this whole by 2, right. And then we say that if heap dot get at parent index, right, जो भी पेरेंट इंडेक्स वाला वैल्यू है हमारा वो अगर हमारी इस वैल्यू से छोटा है, राइट, अगर वो मेरी बेसिकली इंडेक्स वाली वैल्यू से छोटा है, सो इसका मतलब है कि वी हैव टू स्वैप दैट. सो collections dot swap in heap with parent index and index. ठीक है, एंड आफ्टर स्वैपिंग दिस वी से कि हमारा इंडेक्स जो होगा अब वो पेरेंट इंडेक्स हो चुका होगा. ठीक है, अदरवाइज इसका मतलब है कि अभी एलिमेंट ऑन बबल अप नहीं कर सकता, तो इस केस में हम यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे. ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें, तो और तो कुछ नहीं लगा. सो वी कैन ब्रेक इट हियर एंड देन आवर इंसर्शन इज डन. ठीक है, now let's talk about the deletion of an element or also popping the maximum in case of max heap, right. So again we can check if heap dot size is 0, अगर empty है बेस केस, तो बेसिकली क्या करना है भाई, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं कि भाई कुछ है ही नहीं डिलीट करने के लिए, क्या डिलीट करोगे, तो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, -1 रिटर्न कर सकते हो, या फिर यू कैन जस्ट थ्रो एन एक्सेप्शन. ओके, अब डिलीट करते टाइम क्या करते थे, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो डिलीट करते टाइम लेट्स से दिस इज व्हाट माय हीप लुक्स लाइक, 30 10
एंड 80, ठीक है। तो डिलीट करते टाइम हमें दिस द इंडेक्सेस इट लाइक 0 1 एंड 2, ठीक है। तो डिलीट करते टाइम क्या करते थे, जो भी हमारा ये लास्ट वाला जो वैल्यू था है ना, इसको उठा के हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। इसको उठा के अपन ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। देन व्हाट वी डिड, वी डिलीट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम हियर, ठीक है। एंड देन वी सेट कि भाई अब हमारी ट्री में ये एक नोड यहाँ पे जो हमने डाला है, हो सकता है कि इस नोड को शायद नीचे जाना हो, है ना। तो मे बी व्हाट आई डू इज आई एक्चुअली राइट समथिंग लाइक दिस, राइट, जहाँ पे एक्चुअली हम नीचे जाएँ। 30 10 एंड 6 आर द वैल्यूज आई हैव, 6 0 1 एंड 2, ठीक है। नाउ डिलीटिंग अगेन, सो 6 इसको उठा के अपन ने यहाँ पे डाल दिया, तो इसकी वैल्यू होगी 6, ठीक है। और फिर अपन ने इसको डिलीट कर दिया, क्रॉस कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। एंड देन वी आर सेइंग कि भाई अब इस पे अपन ने हीपीफाई रन कर दिया। हीपीफाई रन कर देंगे तो बोलेंगे कि भाई क्या इसका कोई चाइल्ड है जो इससे बड़ा है, तो बोलेगा हाँ भाई 10 इससे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इनको स्वैप कर देंगे। सो दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 6, जो भी हीपीफाई कर रहे थे ऊपर वही बस इसी इंडेक्स पे हम चला देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। सो बेसिकली वी नीड टू डू 2 थिंग्स। वन इज गेटिंग द लास्ट इंडेक्स। सो लास्ट इंडेक्स इज heap dot size -1, right, and then we get the first element, right. So first last index में हमारे पास ये index है, right, and then what we have to say is कि जो भी हमारा top element, right, so basically उसमें basically मेरे को set करना है heap dot set और put होता है, let me check, list dot set int I think is set only, yes, right, तो set ही करते हैं इसको। तो heap dot set at index 0 and then we get the जो भी हमारा last index में value था, ठीक है। So after doing this, what would have happened here कि basically say this was this, right, so 30 10 and 6, ठीक है, 0 1 and 2, तो ये 6 उठा के अपन ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये है। Now we have to remove this one, this index, ठीक है। ये हमारे हीप से रिटर्न डिलीट करना है, तो हीप डॉट रिमूव एंड द इंडेक्स इज बेसिकली द लास्ट इंडेक्स, राइट। ये इंडेक्स हमें यहाँ से रिमूव करनी है एंड वी आर ऑल्सो रिटर्निंग द वैल्यू। तो बेसिकली जो भी डिलीट हुआ होगा वैल्यू वो आप यहाँ से रिटर्न कर देना। सो इंट वैल्यू रिमूव्ड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अपन ने क्या किया, अब अपना ये वैल्यू अपन ने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये वाला वैल्यू अपन ने यहाँ से हटा दी and then this 6 is there, right. So basically all we have to do is run heapify on this index, right. So let me run that. So heapify on index, I think it will be 0, right, it will be 0. And let's see if we are correctly handling when the index is 0 or not. Heapify function में this fine heap dot size 0, largest is 0, index is less than size is 0, तो यहाँ पे अंदर कभी जाएगा ही, तो बेस केस हमारे हैंडल कर रहा है। एंड देन फाइनली वी कैन जस्ट रिटर्न द वैल रिमूव्ड, राइट, जो वैल्यू हमने डाली है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं यहीं पे आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि हम इसे वापस से ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल के थ्रू फोकस ना करें, वो हम टेस्ट केसेस के थ्रू लिखेंगे, ठीक है। तो पॉप हमारा हो गया, हिपीफाई हमारा हो गया, इंसर्ट हो गया, पीक हो गया एंड मैक्स हीप भी हमारा हो गया, बट वी नेवर रोट दिस कोड, राइट, दिस कोड ये अपन ने नहीं किया, बिल्ड मैक्स हीप यूजिंग नम्स। सो व्हाट वी सेड इन द लास्ट वीडियो इज दिस वन, राइट, ये जो हमने डिस्कस किया था एक पार्ट, जहाँ पे हम बेसिकली कह रहे थे कि गिवन एन इनपुट, राइट, गिवन एन इनपुट आई कैन रन हीपीफाई ऑन ऑल फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द फर्स्ट, लाइक नीचे से हम शुरू करते हैं और यहाँ से हम बेसिकली पहले जो पेरेंट मिलेगा ना, पहला जो पेरेंट मिलेगा ना, उससे हम ऊपर जाते जाएंगे ताकि ये सब ट्री हमारी हीपीफाई हो चुकी हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब इसके ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ पे जब हम इस पर हीपीफाई रन करेंगे तो हमारी जो पूरी सब ट्री है, राइट, पूरी जो सब ट्री है, सॉरी पूरी सब ट्री रूटेड एट दिस नोड, फिर ये पूरी हीपीफाई हो चुकी होगी। हीपीफाई हो चुकी है मतलब इट विल बी फॉलोइंग द हीप रूल्स विच आर डिसाइडेड बाय द मैक्स हीप। सो डेफिनेटली वॉच द लास्ट वीडियो, उसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। So having said that, let's do that. So for example, again, we have to start from this index 1. तो अभी इंडेक्स कहाँ से आएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है लास्ट इंडेक्स हो या फिर इनका कितने एलिमेंट्स है इसमें। सो इस केस में मेरे पास एलिमेंट्स है 5, राइट। 5 के लिए मेरे को आ रहा है यहाँ पे 1, है ना, 1 इंडेक्स मेरे को निकालना है, या फिर लेट्स से
5 के लिए मुझे 1 चाहिए, और या फिर 1 2 3 4, राइट। अगर ये 40 नहीं होता, लेट्स से ये 40 हमारे पास नहीं होता, तो बस कितने एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4। इस केस में तो पहला पेरेंट तो यही है, तो मतलब 4 और 5 के लिए मेरे को आ रहा है 1, है ना। सो यू कैन थिंक अबाउट सम फॉर्मूलाज, कुछ अगर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं आप, तो वो क्या सकते हैं ना, द वे वी कैन रीच टू दिस वन इज बाय डूइंग n/2 - 1, ठीक है। n/2 - 1, 4 में से 2 निकालो और फिर 1 हटा दिया, 4 में से 2 डिवाइड करो -1, देन वी कैन रीच टू दिस फॉर्मूला। ओके, सो लेट मी डू दिस फॉर int I is equal to n/2 - 1, I greater than equal to 0, and then I is equal to I - 1, ठीक है। एंड देन ऑल वी हैव टू से इज वी रन heapify ऑन द ith इंडेक्स, तो हमारा हीप बिल्ट हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा हीप था, इसको कभी भी हमने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। तो हीप इज इक्वल टू न्यू array list ऑफ टीचर, एंड वन मोर थिंग वी नेवर डिड यार, क्योंकि ये nums array जो है उससे पहले अपना हीप को जिसे जैसे जैसे बिल्ड तो कर लो। सो विल से int nums in nums, और फिर हमारा हीप में बेसिकली अपन ने ये नंबर ऐड कर दिए, ठीक है। एंड देन वी रैन heapify ऑन दिस, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर इन डिटेल, कि कैसे heapify रन करने से सारे पेरेंट वाले एलिमेंट से बॉटम से अप में हमें बेसिकली एक प्रॉपर वो मिल जाता है। क्या मिल जाता है? हमें एक प्रॉपर हीप एक बेसिकली एरे मिल जाता है जो हमारी मैक्स हीप प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। सो दिस वाज दैट, एंड एक्चुअली गेट डन कोडिंग। लेट्स एक बार रन करके देख लेते हैं कि बस ये कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो n/2 इज नॉट फाउंड सिंबल वेयर इन लाइन 16, और एक्चुअली एक ही एरर आया है, दैट इज इंटरेस्टिंग। सो n इज बेसिकली द nums का साइज, राइट। सो nums का size is n, so we can say nums dot length, right? So let's run this, and looks like we don't have error. Let me clear the console. Okay, so now we are done implementing the function. तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले कंस्ट्रक्टर से अपनी मैक्स हीप को बनाएंगे, और एक मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, बेसिकली public void print। तो ये करेगा, ये बेसिकली बस हमारे हीप में सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। I 0 I less than heap dot size, I is equal to I plus 1, ठीक है। and then we print this case, and we print heap dot get I, okay। तो एक बार इसको भी चला लेते हैं, let's see कि ये भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये चल रहा है, ठीक है। तो चल रहा है मतलब अभी बस ये कोड हमारा कंपाइल हो रहा है, तो मतलब कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट नाउ। सो मैक्स heap mh is equal to new max heap, ठीक है। तो ये वाला जो कॉल होगा, ये बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया होगा। तो बेसिकली अभी हमारी हीप का कुछ भी नहीं होगा। इफ आई प्रिंट, राइट, तो बेसिकली लेट मी राइट दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट println mh डॉट पीक। अगर अभी आप पिक करेंगे तो बेसिकली मेरे को इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू देना चाहिए, राइट, क्योंकि अभी अपना हीप क्या एम्प्टी है। ओके, सो लेट्स रन दिस, and it does give us that element, right? So we are now testing the peak function, okay। So ठीक है, ये बनने कर लिया, तो this is fine। Then what we'll do, we'll add an element in our heap, so we'll say insert 100, ठीक है। After inserting 100, let's check what our peak returns. The peak should return 100, let's run this, and it returns 100, ठीक है। And let's insert few more, so insert 200, ठीक है। और अभी हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा मैक्स क्या रिटर्न करना चाहिए, 200 रिटर्न करना चाहिए। ओके, सो लेट्स रन दिस एंड इट टर्न्स 200, राइट। सो अगेन क्लियर द कंसोल, पीक हमारा सही काम कर रहा है। और क्या कर सकते हैं, एक और वैल्यू डाल देते हैं, कोई छोटी वैल्यू, ताकि सारे टेस्ट केसेस हमारे कवर होने चाहिए। So if I add 50 now, that it should still print 200, because maximum value so far inserted in a heap is 200. Okay, so let's run this code, and it still prints 200, right? So that is correct. Now what we'll do, I'll actually remove the element. So let's remove the element. So system.out.println mh.pop, ठीक है। इस पर जब मैं अगर पॉप करूँगा ना, ठीक है, तो इस पर जब मैं अगर पॉप करूँगा तो मेरे को वो कहना चाहिए कि पॉप कौन सा करेगा, 200 पॉप करेगा, है ना। सो लेट मी क्लियर द कंसोल हियर,
and let's run. And it said index 2 out of bounds for length 2 in EP5 43. EP5 43. Let's see. Take a left index if this is okay. If this is, oh shit, this should be right child index, right? This should be right child index. Sorry, my bad. Okay, let's run this now. Yeah. So we removed an element, right? हमने एक element को remove किया. Okay, let's me clear the console again. Let's run code. We popped, right? So popped should have given me 200, right? But it's giving me 50. Peak is 200, which is fine. So pop पे तो 200 होना चाहिए था. Let's see. Pop में क्या गलती करी अपन ने? Pop पे अपन ने गलती करी, अपन ने लास्ट इंडेक्स निकाला, ठीक है? और इसको अपन ने ऑलरेडी सेट कर दिया. सो एक्चुअली वी कैन वैल रिमूव, पहले अपन अगर सेट कर देंगे तो वो तो करेगा ही ना वैसे. सो हीप डॉट गेट लास्ट इंडेक्स, राइट, एंड देन वी कैन जस्ट रिमूव इट हियर. ओके, सो लेट्स रन दिस नाउ. एक्चुअली हमारा एलिमेंट सही रिमूव हुआ है ना. सो लेट्स रन दिस नाउ. ओह, स्टिल 50. व्हाई नॉट? No. Value to remove is last index only, man. Not last index, yeah. Come on. क्या कर रहा हूँ मैं? This should be the zero index, right? Zero index वाला value remove करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा maximum value बैठा होगा. Correct? If you don't get me, let me just print at all times, right? Print करने के बाद हमारा heap कैसा दिखता है. So after this, I'll print my heap. So let's write this here. Heap, ठीक है. सो heap यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं. सो लेट्स कॉल दिस, यूजुअली दिस इज हाउ यू पुट लॉग्स, राइट? ऐसे आप लॉग्स डालोगे तो आपका इंटरव्यू बहुत खुश हो जाएगा. heap start and then here we put heap at. okay, so let's run now. प्रिंट नहीं मिला उसको. प्रिंट एक्चुअली हमारे mh का फंक्शन है, राइट? सो लेट्स रन दिस. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव, राइट? मैक्सिमम वैल्यू हमारा 200, फिर उसका लेफ्ट साइड 100, राइट साइड 50. ओके, एंड दिस इज, लेट मी रन दिस अगेन टू शो यू क्लियरली. ओके, सो हीप स्टार्ट. इस टाइम पे जब हम प्रिंट कर रहे थे आफ्टर इंसर्टिंग 100, 250, दिस इज व्हाट द हीप लुक लाइक. 200, 150 एंड इसके बाद हमने प्रिंट किया हीप का, पॉप किया एक्चुअली. तो पॉप एक्चुअली 200, ये वाला पॉप किया बनना है ना. तो इसको जब पॉप किया तो वो वैल्यू इज 200. ठीक है, सो दिस इज लुकिंग फाइन. लेट मी जस्ट इंसर्ट फ्यू मोर एलिमेंट्स एंड लेट्स सी कि क्या क्या डाल सकते हैं अपन. तो अभी हमारे हीप में क्या क्या है. एक्चुअली लेट मी प्रिंट दिस हियर एज वेल. तो ये हमारा कॉपी कर लेता हूँ. And then after popping, let's print this. So it should print 150, right? Okay, let's run this. Heap start, heap end. We printed after popping 100 and 200. This is this case, right? Part 2. जब हमने पॉप किया था आफ्टर इंसर्टिंग 100, 250, तो हमने क्या किया, हमने पॉप कर दिया था, है ना. पॉप किया तो 200 पॉप हो जाना चाहिए. तो हमारे पास हीप में केवल 50 और 100 ही होना चाहिए. लेट्स क्विकली सी दिस. ओके, पॉप में हमारा थोड़ा और गड़बड़ है. पॉप में हमने क्या किया, लास्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट निकाला. लास्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट हमारा दे रहा होगा वो 50, राइट? तो 50 हमने निकाल लिया. फिर हमने 50 इसको असाइन नहीं 50 हमने 200 इसमें असाइन कर दिया वैल रिमूव में, ठीक है. तो 200 हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है. फिर हमने 0 पे जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स वाला वैल्यू था विच इज़ 50, वो 0 पे सेट कर दिया, ठीक है. फिर हमने लास्ट वाली इंडेक्स रिमूव कर दी, ठीक है, जिस फाइन. तो 50 हमारा डिलीट हो गया होगा.
और फर्स्ट वाले में भी हमारा 50 वैल्यू सेट हो गया होगा. Set 0 at last index, right? Then we do heapify on the 0. ठीक है, तो heapify पे देखते हैं. heapify पे actually let's put more logs here, right? तो यहाँ हमने heap start किया, printing it, हमने 100 250 डाला है, हीप स्टार्ट हीप एंड हमने यहाँ पे पॉप कर दिया. ठीक है, पॉप किया होगा तो दिस वॉज द राइट हीप स्टार्ट एंड हीप एंड. पॉप करने के बाद 100. ठीक है, फिर अगेन वी प्रिंटेड द हीप स्टार्ट एंड हीप एंड, राइट? ओ दिस इज वेयर वी प्रिंटिंग, सॉरी माई बैड. सो 150 इज करेक्ट, राइट? 150 इज करेक्ट. एंड देन वी आर अगेन इंसर्टिंग इन दिस. और मेथड्स राइट लिखे थे, इट्स जस्ट दैट लॉग्स हमने सही से नहीं लिखे हुए हैं. ठीक है, सर आफ्टर डूइंग दिस व्हाट वी आर डूइंग कि हमारे हीप में क्या क्या बैठा है. हमारे हीप में बैठा है अभी 100 और 50. फिर हमने उसमें इंसर्ट किया 100 एंड 250. एक्चुअली नॉट, लेट्स यूज डिफरेंट पैरेंट्स, राइट? तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ. अभी हमारे पास हीप में एट दिस पॉइंट वी हैव दिस वन, राइट? 150. तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डाल देते हैं एक 150, एक हम डाल देते हैं 250 और एक हम बस ये इतना ही डालते हैं. ठीक है, सो लेट्स रन दिस. सो इसके बाद पीक हमारा 150 देना चाहिए, इसके बाद पीक हमारा 250 देना चाहिए. लेट्स रन दिस. यस, पीक इज गिविंग 150 एंड देन पीक इज गिविंग 250. सो लुक्स लाइक दिस इज वर्किंग फाइन. पीक हमने डिबग कर लिया और पॉप हमने डिबग कर लिया. इंसर्ट सही चल रहा है. ठीक है, इंसर्शन करने पे हमारे हीप सही प्रिंट कर रही है हर बार, है ना? तो ये भी हमारा सही चल रहा है. देन व्हाट वी हैव द what else is remaining? heapify भी हमारा सही चल रहा है क्योंकि एक्चुअली heapify को देखने के लिए आप कैसे कर सकते हो. लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल क्विकली. सो व्हाट विल डू इज विल एक्चुअली रिमूव कमेंट दिस कोड. ठीक है, ये कोड को हम कमेंट कर देते हैं एंड लेट मी शो यू द heapify पार्ट विथ max heap is equal to mh is equal to new max heap. Here we will use the second constructor. ठीक है, सेकेंड कंस्ट्रक्टर में हम देखेंगे कि हमारा मैक्स heap सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. सो लेट मी क्रिएट a nums array. So nums is equal to and in this I'll add few values. So actually let me use the example that we had 20 10 17 30 40, right? 20 10, then we have 17 30 and 40. 17 30 and 40. ठीक है, and if I now pass this nums array, ठीक है, and then we say mh dot print. Let's see. तो हमारा हीप क्या हो जाना चाहिए था, हमने ये ऑलरेडी किया, राइट? 40 30 70 20 10. लेट्स सी इफ दिस इज द थिंग इट इज प्रिंटिंग. 40 30 70 20 10, 40 30 70 20 10, राइट? दिस इज द एग्जाम्पल वी डिबग इन द लास्ट केस. तो इसका मतलब हमारा heapify वाला काम भी सही कर रहा है. ओके, so this is it actually and this is what you should do as well. like आप क्या करोगे, और क्योंकि हमने इस चीज़ को ऑलरेडी डिबग कर लिया, राइट? इंसर्ट पॉप और प्रिंट और पीक, ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी डिबग कर ली. तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शंस विल नाउ ऑटोमेटिकली विल वर्क फॉर द दिस न्यू कंस्ट्रक्टर क्योंकि all we have is heap, right? All we have is heap with these values now. So you don't have to test again for these functions. This is something you can work with intuitively. This is a very important thing. This is what it kind of shows कि भाई ये बंदा एक्सपीरियंस है और समझ में आता है इसको चीज़ें. ठीक है, बट यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक प्रिंट कर लेते हैं, पीक प्रिंट कर लेते हैं. लेट्स सी कि एक्चुअली वो हमारा पीक सही प्रिंट कर रहा है. mh डॉट पीक. अब ये करूँगा, एक पॉप भी कर दूँगा. सो सिस्टम डॉट लेट्स डू दिस. इसको प्रिंट कर लेते हैं पॉप को. आफ्टर डूइंग दिस वी विल अगेन प्रिंट द पीक पार्ट. ठीक है, सो लेट्स रन दिस. ठीक है, तो 40 पहले अपन को मिला. ठीक है, 40 हमको कहाँ मिला था, ओ सॉरी एक्चुअली प्रिंट ना, प्रिंट के अराउंड अपन वो डाल देते हैं जो हमारे बंदे डाले थे जिसको गार्ड करेंगे अच्छे से हाथ. ठीक है, तो इसको कमेंट कर दो, इसको कमेंट कर. लेट्स प्रिंट द इनिशियल हीप. सो एक्चुअली लेट्स क्लियर द कंसोल, लेट्स रन कोड.
40, 30, 17, 20, 10, दिस इज व्हाट वी हैव हीप एंड। ठीक है, इसके बाद पीक हमने पूछा, पीक उसने बोला 40। ठीक है, वी पॉप पे हमने उसको बोला तो उसने पॉप किया 40 एंड वी आस्क्ड अगेन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू नाउ। सो मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंग दिस लेट्स प्रिंट आवर हीप अगेन। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अपन ने पीक कर लिया, पीक उसने 40 दे दिया, फिर अपन ने पॉप कर दिया। ठीक है, पॉप अपन ने 40 पॉप किया था। लेट्स प्रिंट द हीप हियर, राइट। इसके बाद हीप अपने को क्या देना चाहिए? ठीक है, कंसोल लेट्स राइट अगेन। ओके, first this is what the heap looks like 40, 30, 70, 20, 10 which we validated from there. then we peak हमारा 40 है अभी। ठीक है, फिर हमने पॉप किया तो उसने पॉप किया 40, फिर हमने बोला लेट्स प्रिंट द हीप अगेन। तो आफ्टर पॉपिंग वी विल हैव दीज एलिमेंट्स इन आवर हीप, राइट। सो 30, 20, 17 एंड 10 हीप एंड वी अगेन पीक पूछा तो उसने बोला कि टॉप एलिमेंट ऑफ 30। Okay, so that's it for this video. In the next video, we'll discuss the timing space complexity for all the methods that we have implemented here. Okay, so see you soon. Bye.